नमस्कार फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों आज रोज दोस्तों मैं आपके लिए स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर दोस्तों वीडियो नंबर 4 लेके आया हूँ कि जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा टॉपिक नंबर 5.1.4 एंड टॉपिक नंबर 5.1.5, जिसके बारे में आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों चैप्टर का नाम हमारा है सरफेस केमिस्ट्री। उपनिषद साइंस एकेडमी राजकोट एंड लिमखेड़ा, वी हैव 2 different branches from last 8 years. I am teaching the chemistry subject. Now, as we have discussed in the last session that today we are going to discuss about the topic number 5.1.4, that is adsorption isotherms. So what is it and what we have to discuss it, one by one we'll be discussing. But before starting the session of today, those who are new, subscribe the channel so that you can receive the latest notification. So let's get started. Adsorption isotherms. So first of all, we'll be discussing about the definition of adsorption isotherms. So what is it? The definition: the variation in the amount of gases adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by means of a curve which is termed as adsorption isotherm. Once again, variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent. जो हमारा adsorbent होता है वो कितने अमाउंट का गैस को एड्सॉर्ब करने वाला है, ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर, विथ सर्टेन प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं और वो कर्व जो है उसको हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। वंस अगेन, variation in the amount of gas which has been adsorbed by our adsorbent with pressure at constant temperature. If you wanted to express it by a curve, then that curve is known as adsorption isotherm. So this is what the definition of adsorption isotherm. Now, in adsorption isotherm, we have to discuss about the Fundlich adsorption isotherm. So what is it? Let us discuss it. Fundlich in 1909 gave an empirical relationship between the quantity of gas, how much quantity of gas it has been adsorbed, कितना गैस एड्सॉर्ब किया हुआ है हमारे एड्सॉर्बेंट ने, बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट एंड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। वंस अगेन, क्या रिलेशनशिप दिया हुआ है? अमाउंट ऑफ और द क्वांटिटी ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड बाय यूनिट मास of solid adsorbent and pressure
at a particular temperature. So let us express these in the form of the formula, that is the x upon m, that is amount of gas adsorbed by a unit mass of solid adsorbent, is directly proportional to the pressure 1 upon n, where n will be greater than 1. Now here if you remove the proportional sign, then you have to add the constant k, p raised to 1 upon n, where n is greater than 1. Where x क्या है वो देखते हम. Where x is the mass of the gas adsorbed on the mass m of the adsorbent at a particular pressure, whereas k and n are the constant which are depend on, ये MCQ पूछते हैं, k, n, n, they are dependent on what? They are dependent on the nature of the adsorbent and the gas at a particular temperature. The relationship is generally represented in the form of a curve. उसको हम कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले, where mass of the gas adsorbed per gram of adsorbent is plotted against the pressure, means x upon m will be plotting against pressure P. उनका हम ग्राफ बनाने वाले हैं. Okay, so let us see the graph. Yes, wait, it is coming, don't worry. x upon m versus p का ग्राफ है हमारा. Okay, at different temperature, at 195 Kelvin there is a curve, at 244 Kelvin there is a curve, and at 273 Kelvin also there is a different curve. These curves indicate that at a fixed pressure, क्या इंडिकेट कर रहे हैं? फिक्स प्रेशर हो अगर हमारे पास, there is a decrease in the physical adsorption. ये तो हमें पता है, फिक्स प्रेशर, decrease in physical adsorption. With increase in the temperature. Once again, there is a decrease in physical adsorption with increase in temperature. टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ओके, वैसे वैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या हो रहा है. देखो कांस्टेंट प्रेशर है हमारे पास, फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा कब? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ओके, देन फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है. ये ग्राफ के ऊपर से हमें पता चलता है. These curves always seem to approach a saturation at high pressure. प्रेशर जैसे जैसे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो सैचुरेट लेवल पे आ जा रहे हैं. देखो, ओके, नाउ we have the formula, this x upon m is equal to k into p raised to 1 upon n, where n greater than 1. Okay, now taking the logarithm
इनका log लेने वाले, ये जो फॉर्मूला है उसका हमें log लेना है. Okay, then we can write in this way, log x upon m on left hand side, log we have taken, log x upon m is equal to, will remain same, log k, where this power is there will come front, log k plus 1 upon n and then log p. Okay, now the validity of Fundlich isotherm can be verified by plotting a graph of don't worry, the graph of log x by m versus log p. If it comes to be a straight line, यहाँ पे देखो हमें straight line मिल रही है. Okay, the Fundlich isotherm is valid. अगर straight line मिल रही है, then we can say that the Fundlich isotherm is valid. Okay, straight line मिले तो. Otherwise, if we are not getting in the straight line, okay, then Fundlich is not valid. The slope of the straight line, जो उसका slope मिल रहा है, okay, will be 1 upon n. ये रहा देखो, ये आपका slope है. आपने ग्राफ log x by m versus log p का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है. Okay, so you will be getting the slope 1 upon n and the intercept, okay, this would be the intercept log k. Okay, ये रहा देखो, will be log k. ओके, तो दोस्तों ये हमें याद रखना है. ओके, log x बाय m वर्सेस log p के ग्राफ में स्लॉप क्या मिलता है? इट इज 1 अपॉन n एंड इंटरसेप्ट विल बी log k. ओके, ये MCQ में हमें याद रखना है दोस्तों. ओके, स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो Fundlich फॉलो हो रहा है. ओके, नाउ Fundlich isotherm explains the behavior of adsorption in an approximate manner. इससे हम जो गैस एड्सॉर्ब हो रहा है, ओके, उनका बिहेवियर चेकअप कर सकते हैं, पर वो भी कैसे मैनर में? अप्रोक्सीमेट मैनर में. ओके, सपोज अगर जो फैक्टर मिल रहा है, समझ लो जो स्लॉप है हमारा, उसका फैक्टर 1 upon n can have values between कितनी होगी? 0 and 1. 0 and 1 के बीच की वैल्यू. ओके, प्रोबेबल हम बोल सकते हैं कि 0.1 to 0.5 अप्रोक्सीमेटली. ओके, तो जो इक्वेशन है हमारा 5.2 वाला, 5.2 मतलब log x upon m is equal to log k plus 1 upon n log p. This one is the your equation. Okay, तो फैक्टर 1 upon n
values between 0 and 1 approximately it would be 0.1 to 0.5. तो जो ये हमारा इक्वेशन है log x by m अपॉन is equal to log k plus 1 upon n log p holds a good over a limited range of pressure. Okay, once again factor 1 upon n can have the values between 0 and 1. Approximately you can say the value will be 0.1 to 0.5. तो इक्वेशन जो है हमारा दैट इज log x by m log k 1 upon n की जो वैल्यू है कितनी रहेगी 0 और 1 के बीच में. ओके तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये इक्वेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं होल्ड्स अ गुड ओवर लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर अगर लिमिटेड हो तो एड्सॉर्प्शन भी अच्छा हो जाएगा. ओके नाउ सपोज जो वेक्टर है हमारा 1 अपॉन n ओके इज इक्वल टू 0 अगर आंसर हो. ओके तो क्या होगा कि भाई x अपॉन m की जो वैल्यू है फॉर्मूला में वो आ जाएगा कांस्टेंट. ओके इट मीन्स द एड्सॉर्प्शन इज, इसका मतलब क्या हुआ जो हमारा एड्सॉर्प्शन है ओके इज independent of pressure. ओके प्रेशर से वो इंडिपेंडेंट हो जाने वाला है. और ये सब एमसीक्यू के लिए दोस्तों याद रखना है आपको. ठीक है, सपोज आपका जो फैक्टर 1 अपॉन n है ओके वो 1 हो, 0 के बदले 1 हो. ओके तो जो हमारा फॉर्मूला है x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी आ जाने वाला. ओके इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन कि भाई जो x अपॉन m जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, क्योंकि k तो क्या है कांस्टेंट, वो प्रेशर डिपेंडेंट हो जाएगा. ओके सो एड्सॉर्प्शन वेराइज डायरेक्टली विद द प्रेशर. ओके डायरेक्टली वो प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके तो ये जो पूरा फंडामेंटल है दोस्तों खास करके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेडब्ल्यू नीट गुजकेट बोर्ड उनके लिए. ठीक है, वंस अगेन 1 अपॉन n वैल्यू जो है वो 0 एंड 1 के बीच में रहती है. ठीक है, उसमें सपोज आपके पास 1 अपॉन n की वैल्यू 0 हो तो x बाय m जो एड्सॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा. मतलब एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा. ओके सपोज जो 1 अपॉन n की जो वैल्यू है वो 1 हो ओके तो x बाय m इज इक्वल टू k इंटू पी हो जाएगा. ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर. ओके इट मीन्स जो हमारा जो एड्सॉर्प्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. प्रेशर चेंज होगा तो एड्सॉर्प्शन में वेरिएशन आने वाली है. ओके नाउ बोथ द कंडीशंस आगे जो हमने देखी 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0 वाली और 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 वाली आर सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. वैसे नहीं बोल रहे. ओके द एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म्स always seem to approach the saturation at high pressure. प्रेशर ज्यादा होगा तो वो सेचुरेट हो जाएगा. दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय फुनलिच आइसोथर्म, तो ये उनकी लिमिटेशन हो जाएगी. दस इट फेल्स एट हाई प्रेशर. हाई प्रेशर पे फुनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फॉलो नहीं होने वाला है. ओके तो ये उनका लिमिटेशन होने वाला है दोस्तों. ओके सो दैट्स ऑल, विल बी कीपिंग इट टिल हियर. ओके टॉपिक नंबर 5.1.4. नाउ नेक्स्ट टॉपिक
is the topic number 5.1.5, that is adsorption from solution phase. So what is it? Let us discuss it. वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। Solids can adsorb solutes from solution also. For example, when a solution of, we have taken the solution of acetic acid, इसके अंदर हमने acetic acid लिया हुआ है, okay, and water, दो चीजें हैं solution के अंदर। Acetic acid is having the formula CH3 COOH plus water. Okay. When a solution of acetic acid in a water is shaken with a charcoal, इसको आपको ये solution के अंदर हम charcoal डालेंगे दोस्तों। क्या डालने वाले हैं? charcoal। एंड मिक्स करना है प्रॉपरली, अच्छे से। ओके, तो क्या होगा? अ पार्ट ऑफ द एसिटिक एसिड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द चारकोल। ये एसिटिक एसिड के जो पार्टिकल है, ओके, वो एब्जॉर्ब्ड होने वाले हैं, ये चारकोल की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे और ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा? द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो रहेगा, शुरुआत में सपोज कि समझ लो कि 5 मोलर है, ठीक है, 15 मिनट के बाद वो 5 मोलर में से सपोज ओनली 1 मोलर हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? ये 4 मोलर कहाँ गया? तो 4 मोलर के जो पार्टिकल्स है, ओके, ऑल दिस पार्टिकल्स विल बी अट्रैक्टेड और एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। ओके, तो यहाँ पे सॉलिड जो है वो चारकोल है। ओके, उन्होंने जो सॉल्यूशन था उसमें से सॉल्यूट के जो पार्टिकल है, सॉल्यूट के पार्टिकल मतलब एसिटिक एसिड के पार्टिकल, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास। देन और एक एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों। सिमिलरली द लिटमस सॉल्यूशन, इसके अंदर हमने लिटमस सॉल्यूशन लिया हुआ है। ओके, व्हेन शेकन विथ चारकोल, इसको भी मिक्स करना है चारकोल के साथ। ओके, तो जो लिटमस का जो कलर रहेगा वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिटमस के जो सॉल्यूट के पार्टिकल है, ओके, ऑल विल बी अट्रैक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, चारकोल की सरफेस के ऊपर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके, तो वो कलरलेस होने वाला है। देन the precipitate of magnesium hydroxide MgOH twice attains a blue color when precipitated in presence of magneson reagent. The color is due to the adsorption of magneson. तो मैग्नेशियम रिएजेंट जो है दोस्तों, देखो ऐसे दिखता है। ओके, वंस अगेन द प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो देखो पीपीटी है, इसका MgOH ट्वाइस का, उसका कलर आप देख रहे हो तो वो स्लाइटली ब्लू कलर अटेन करेगा। ओके, व्हेन प्रेसिपिटेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेसॉन रिएजेंट, रिएजेंट आपने लिया हुआ है तो ओके, जो कलर है दैट इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नेसॉन। तो मैग्नेसॉन रिएजेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, भले वो आपकी बुक में नहीं है पर हम डिस्कस करते हैं। मैग्नेसॉन रिएजेंट यूज्ड एज अ कलर इंडिकेटर, यहाँ पे देखो ब्लू कलर इंडिकेट किया। ओके, एंड डिटेक्शन ऑफ मैग्नीशियम
इन अ सॉल्ट कंपाउंड, तो ये देखो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है जो ब्लू कलर में अपीयर कर रहा है, ओके, दिखा रहा है। मैग्नेसॉन रिएजेंट रिएक्ट विथ मैग्नीशियम एंड रिजल्टिंग द ब्लू प्रेसिपिटेट, वो ब्लू कलर के पीपीटी हमें दे देता है, ठीक है। तो ये मैग्नेसॉन रिएजेंट का काम है दोस्तों, ओके। भले आपकी बुक में नहीं है पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देन the following observations have been made in case of adsorption from the solution phase. So what are they? Let us discuss it one by one. So the first one, the extent of adsorption decreases with an increase in the temperature. Adsorption का जो extent है, कितने हद तक वो adsorption हो रहा है, वो कम हो रहा है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो। Then the second one, the extent of adsorption increases with the increase of surface area of the adsorbent. ये तो हमारी बात हो गई, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होने वाला है। आफ्टर दैट, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है उसके ऊपर भी वो डिपेंडेंट है। आफ्टर दैट, the extent of adsorption depends on the nature of the adsorbent and the adsorbate. बेट एंड बेंट दोनों के नेचर के ऊपर भी वो डिपेंडेंट है, ओके। सो दिस आर दी फ्यू ऑब्जर्वेशंस विच हैज बीन मेड इन केस ऑफ द adsorption from the solution phase. Now the precise mechanism of adsorption from solution is yet not known. वो अभी तक उतना क्लियर नहीं हुआ है। देन फुंडलिच इक्वेशन जो है हमारा दोस्तों, फुंडलिच इक्वेशन approximately describes the behavior of adsorption from solution with a difference that instead of pressure, with a difference that instead of a pressure, concentration of the solution is taken into account. मतलब कि आपको प्रेशर की जगह अगर सॉल्यूशन फेस में आप काम कर रहे हो, मतलब कि लिक्विड फेस में काम कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पे अगर गैस हो तो आपको प्रेशर लगाना है, ओके। पर सपोज आपके पास लिक्विड हो, okay, then you need to take, instead of taking the pressure you have to take the concentration, आपको concentration C लेना पड़ेगा, okay। तो उसके ऊपर से जो फॉर्मूला था हमारा, क्या फॉर्मूला था वो भी आपको बोल देता हूँ, x/m is equal to k into p⁻1/n। इसमें p के बदले हम क्या लगाने वाले हैं, c। देखिए x/m is equal to k, p के बदले c आ गया, ⁻1/n, where c जो है that is an equilibrium concentration, okay। एंड अभी इसका लॉगरिथम ले लेंगे दोस्तों, तो x/m जो है वो log x/m हो जाएगा, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, नो चेंज इन दैट, k विल बी log k, जो पावर 1/n है वो आगे आ जाएगा, प्लस 1/n एंड देन log c। आगे जैसे हमने किया था वही काम हमें दोस्तों करना है। नाउ प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ log x/m वर्सेस log c। अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ओके, तो वो फुनलिच आइसोथर्म की वैलिडिटी प्रूफ कर देता है, ओके। तो चलिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं दोस्तों। जो ग्राफ है हमारा log x/m वर्सेस log p, नहीं log c, p के बदले क्या हमें लेना है, c।
ओके। तो अगर यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन, तो देखो स्ट्रेट लाइन मिल रही है दोस्तों। ओके, तो फुनलिच आइसोथर्म जो है वो प्रूव हो रहा है, वैलिड हो रहा है यहाँ पे। ओके, जिसमें स्लॉप जो है वो 1/n, इंटरसेप्ट विल बी log k। ओके, वही का वही सब है, आप देख सकते हो यहाँ पे। देन these can be tested experimentally by taking solutions of different concentration of acetic acid। तो चलिए दोस्तों ये भी टेस्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बीकर लेते हैं कुछ, यस, ये बीकर के अंदर क्या करना है हमें, टेकिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, द फाइनल कंसेंट्रेशन, देखो यहाँ पे एक चीज है कि जो उनका वॉल्यूम रहेगा वो सेम रहेगा, इक्वल वॉल्यूम लेने वाले। ओके, तो सपोज कि यहाँ तक के वॉल्यूम का एसिटिक एसिड ले रहे हैं सभी में, ये शायद ड्रॉ करने में ऊपर नीचे दिख रहा हो आपको, पर वॉल्यूम तो इक्वल है। यस, इसमें 1 मोलर ले रहे, इसमें 0.1 ले रहे, इसमें 3 मोलर ले रहे, इसमें 0.01 मोलर ले रहे, ओके, इसमें 2 मोलर ले रहे। सो वी हैव टेकन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला अभी मैंने आपको आगे बोला था, CH3COOH। ओके, equal volume of the solutions are added to the equal amount of the charcoal in different flask। ये सभी में चारकोल डालने हैं, वो भी इक्वल अमाउंट के। सपोज सभी में 1 ग्राम के चारकोल ऐड कर देते हैं। ओके, 1 ग्राम के चारकोल है, क्या है, ओके, सभी अलग अलग फ्लास्क के अंदर। द फाइनल कंसेंट्रेशन इज डिटरमाइंड इन ईच फ्लास्क आफ्टर एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन हो जाएगा उसके बाद उसका जो फाइनल कंसेंट्रेशन है, ओके, वो सभी फ्लास्क का हम डिटरमाइन करेंगे। द डिफरेंस इन द इनिशियल एंड फाइनल कंसेंट्रेशन विल गिव अस द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू वो हमें दे देगा। ओके, यूजिंग द अबव इक्वेशन, जो ऊपर वाला जो हमारा फॉर्मूला है, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c, validity of Funlich isotherm can be established। Okay, so this is what the topic number 5.1.5, that is adsorption from solution phase. Now next topic we are going to do it, that is the applications of adsorption। So the phenomena of adsorption finds a number of applications, बहुत ज़्यादा उसके इस्तेमाल है, उसमें से कुछ जो है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट वी आर गोइंग टू सी इट। तो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। द फर्स्ट वन, द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल फ्रॉम अ वेसल इवैक्यूएटेड बाय a vacuum pump to give a very high vacuum। मतलब कि वेरी सिंपल, आपको वैक्यूम, यहाँ पे देखो उसका फोटोग्राफ दिख रहा है, अगर आपको वैक्यूम क्रिएट करना हो, ओके, तो उसके लिए एड्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। और उसमें एड्जॉर्बेंट कौन सा हम लेने वाले हैं, चारकोल। ओके, देन द सेकेंड वन,
गैस मास्क। गैस मास्क देखो यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है। ओके, दोज हु आर वर्किंग विद द कोल माइंस में जो लोग काम करते हैं। ओके, किसमें? कोल माइंस में, कोयले की खान में जो लोग काम करते, वहाँ पे जो पॉइजनस गैस जनरेट होते माइंस में से, उससे बचने के लिए जो बंदे वहाँ पे काम करते होते, ओके, दे आर यूजिंग द गैस मास्क। ओके, जो गैस मास्क है वो किसका बना हुआ है? कंसिस्ट ऑफ द एक्टिवेटेड चारकोल और अ मिक्सचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ओके, आफ्टर दैट द थर्ड वन, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। यहाँ पे देखो आपको सिलिका जेल दिख रही है एज वेल एज द एल्यूमिना जेल। तो ये एड्सॉर्बेंट है, बहुत अच्छे वाले, जो मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। सिलिका जेल एज वेल एज द एल्यूमिना जेल, एल्यूमिनियम जेल। देन रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन हो, समझ लो उसमें कोई कलर वाला कंपाउंड या सॉल्यूशन हो, ठीक है, उसमें अगर आप ये एनिमल चारकोल की जो टैबलेट यहाँ पे दिख रही है आपको, वो ऐड कर दो, तो कलर को जो पार्टिकल है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, तो ऐसे सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा। देन heterogeneous catalysis. Okay, what is it? Heterogeneous means different, hetero means different. Okay, catalysis means catalyst है आपके जो रिएक्टेंट है उनका जो फेस रहेगा, स्टेट, वो डिफरेंट रहेगा। एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। आपके पास एक सॉलिड सरफेस वाला कैटालिस्ट है, उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ओके, विथ इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। Adsorption of reactant on the solid surface of the catalyst increase the rate of reaction. Catalyst जो है rate of reaction बढ़ा देगा। There are many gaseous reactant, बहुत सारे गैस रिएक्टेंट जो है वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है। ओके, तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक एक करके मैं आपको बोलता हूँ। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। किसका? अमोनिया का, दैट इज NH3। आपको याद होगा हेबर प्रोसेस से। ओके, उसमें कैटालिस्ट हमारा है आयरन। ओके, देन दूसरा मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, वो भी आपको पता होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, यूज ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया यूजिंग द आयरन एज ए कैटालिस्ट। मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यूज ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल। जस्ट अ मिनट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं? That is V2O5, that is vanadium pentoxide. ओके, कौन सा हम ले रहे हैं? V2O5। ओके, vanadium pentoxide।
Just a minute. Even here platinum is also used. Okay, यहाँ पे हम प्लेटिनम भी इस्तेमाल करते हैं. ओके, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस. देन आफ्टर दैट मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल. तो उसमें निकल कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है. ओके, जिसको हम, ये रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन. देखो यहाँ पे हेबर प्रोसेस, देन कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. ओके, तो उसमें देखो आपने देखा कि ये सभी जो है, ठीक है, आपके जो कैटालिस्ट है वो सॉलिड फेस में है. ओके, एंड आपका जो रिएक्टेंट है, ओके, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सॉलिड सरफेस, द कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा. देयर इज अ मैनी गैसेस, ये सब गैसेस है. ओके, ये कुछ उसके एग्जाम्पल है किसके, हेट्रोजीनस कैटालिसिस के. ओके, देन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस. कौन से इनर्ट गैसेस में कौन कौन आएंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ओके, जेनॉन, रेडॉन एटसेट्रा. ओके, सो सच इनर्ट गैसेस आपको अगर सेपरेट आउट करने हो तो उनका जो एड्सॉर्प्शन का जो डिग्री है वो डिफरेंट रहता है. तो उसमें आपको क्या यूज करना है, चारकोल ले लेना है. ओके, देखो यहाँ पे लिया हुआ है, ये सब चारकोल है. ओके, तो उसका जो मिक्सर है वो यहाँ से सपोज हम पास ऑन करेंगे नोबल गैसेस के मिक्सर को, एंड कैन बी सेपरेटेड बाय एड्सॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल. यहाँ पे जो चारकोल की कैटेगरी है दैट इज द कोकोनट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर. अलग अलग टेम्परेचर पे ये सब जो है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्गॉन वगैरह जो है सब सेपरेट आउट होते हैं. ओके, आफ्टर दैट in curing diseases, a number of drugs means medicine are used to kill germs by getting adsorbed on them. So यहाँ पे भी adsorption का यूज होता है. आफ्टर दैट फ्रॉथ फ्लोटेशन जो पढ़ गए हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर दोस्तों. ओके, अ लो ग्रेड सल्फाइड ओर इज कंसंट्रेटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका एंड अदर अर्थी मैटर बाय दिस मेथड, दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन यूजिंग पाइन ऑयल एंड फ्रोथिंग एजेंट. देखो यहाँ पे आपको फ्रोथ फ्लोटेशन का फोटोग्राफ दिया गया है जो ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 6 में कर गए और वो चैप्टर हमारा ऑलरेडी खत्म है. देन एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स, surfaces of certain precipitate such as silver halides have the property of adsorbing some dyes. like MCQ के लिए याद रखना है सिल्वर हैलाइड कौन सी डाई को एड्सॉर्ब करेंगे, इओसिन, फ्लोरोसिन एटसेट्रा, एंड thereby producing the characteristic color at the end point. Then chromatographic analysis. Chromatographic analysis based on the phenomena of adsorption finds a number of applications in analytical as well as in industrial fields. So that's all. We'll be keeping it till here. The topic number 5.1.4, 5 and 6, the applications of adsorption. Okay, मैंने आपको स्टार्टिंग में टिल 5 ही बोला था पर 6 छोटा टॉपिक था तो साथ में हमने ले लिया है. ओके, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो दोस्तों. ओके,
अभी नेक्स्ट सेशन जो रहेगा हमारा वो 5.2 जो टॉपिक है कैटालिसिस, वो तो हमें पढ़ना नहीं है दोस्तों। कोविड-19 की वजह से जो डिलीटेड सिलेबस की PDF है जो गवर्नमेंट के ओर से हमें मिली हुई है, उसके हिसाब से हमें जो कैटालिसिस टॉपिक है 5.2 वो नहीं पढ़ना है। सो नाउ डायरेक्टली विल बी मूविंग ऑन टॉपिक नंबर 5.3 दैट इज कॉलॉइड्स इन द नेक्स्ट सेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू। अपनी टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, उसके अंदर भी अगर आपको ज्वाइन होना हो तो ये वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन होने की लिंक भी मैं भेज दूंगा, ताकि आप उसके अंदर भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें सभी वीडियो की नोटिफिकेशन दी जाती है दोस्तों। ओके, थैंक यू, बाय बाय।